The sun is a daily reminder that we too can rise again from darkness, that we too can shine our own light. A very warm good morning and Jai Hind to respected dignitaries, esteemed guests, respected teachers, and my beautiful audience. I, Ashita Shukla, extend a warm and a hearty welcome to our chief guest, respected Dr. Swaleha, Assistant Professor, Department of Mental Health from Chhatrapati Shivaji Subharati Hospital. I also welcome to Dr. Ritika, Senior Resident, Department of Mental Health from Chhatrapati Shivaji Subharati Hospital. A fully burned cigarette ash said, "Today it's me because of you and tomorrow it's you because of me." As we all know that today is 31st May, which is named as World No Tobacco Day, for which we all are gathered here. This year, once again, WHO and public health champion come together to raise awareness about harmful influences of tobacco. The theme for World No Tobacco Day 2024 is protecting children from tobacco industry interference. This theme focuses on advocating for an end to the targeting of youth with harmful tobacco products. So, as we all are also health champions, so we should also contribute a little to this campaign by inspiring our youth to eradicate the use of tobacco. Now, moving ahead, to make this event blessed one, let's invoke Goddess Saraswati by kindling the lamp of knowledge and wisdom. Shubham karoti kalyan marogyam dhan sampata Shatru buddhi vinashaye deep jyoti namostute. For seeking the choicest blessing for the same, I would like to invite our chief guest, respected Dr. Swaleha ma'am, respected Dr. Ritika ma'am, and all the dignitaries to kindle the lamp. I request you to all kindly stand on your seats. Thank you so much, ma'am. I request you all kindly take your seats. Now, I would like to request respected Professor Ambli ma'am from Department of Ops and Gynae for come upon this stage and welcome our today's chief guest with her inviting words. Please, ma'am, kindly come on stage. Good morning all. I welcome everybody for this celebration of World No Tobacco Day. So we see globally there are around 24 to 50,000 million children are getting affected every year because of this tobacco use. Normally we say
say no, it is a negative. Which, by example, I can say, like, you want to study now? No. So that gives a negative feeling for everybody. But here, they have highlighted this no in a positive way. When they say no tobacco for the safety and the protection of the children. Especially the years also they say 13 to 20 years of children, where they are more prone for this tobacco use. So I really proud they from the mental health department they came with such a program for promoting our children's for World No Tobacco Day. So I wish them success and continue with the program. Thank you so much, ma'am. Some gifts are big, other are small, but the one that come from heart are the best gift of all. Now, it's time to express our gratitude. Here, we have sapling as a token of love and appreciation. I request to respected Professor Ambli ma'am from Department of Ops and Gynae to kindly present the token of love to our honored guest, respected Swaleha ma'am. Thank you so much, ma'am. Now, I request to respected Associate Professor Deepak sir, HOD of Medical Surgical Nursing, to facilitate the token to respected Ritika ma'am. Give a big round of applause for welcoming our chief guest. Thank you so much, sir. If you have to put someone on pedestal, put speakers, because they are the society's hero. So, without further delay, I would like to welcome respected Swaleha ma'am on stage. Please grace us with your insightful words and enlighten us with your wisdom. Please give a big round of applause for welcoming our guest on stage. Welcome. Thank you so much. I would first like to thank all of you for such a warm welcome. I am very humbled, and on behalf of Department of Psychiatry, I would like to thank Dean ma'am and all the nursing faculty who have such graciously invited us and done a very wonderful program of organizing all this. So from the whole Department of Psychiatry, I would like to thank you all so much. It's an opportunity for us to speak and impart our knowledge, especially to such young minds, such inquisitive minds. So I would like to really thank for this opportunity. And coming to today's topic, so today is World No Tobacco Day. So this day is celebrated every year on May 31st. Since 1987, we have been celebrating it so that we can decrease the tobacco use, increase the awareness of the harms of tobacco use. So that is why we are all gathered here today to celebrate this World No Tobacco Day. And what we are going to do is just give a informal talk. It's not a very formal talk. We are just again trying to raise awareness as much as possible. So Dr. Ritika will be speaking a little bit, I'll be speaking a little bit, and at the end of the lecture we would just like to have a panel discussion, a little bit of question answers, because I feel as much interaction as possible should be made. I don't want this to be a one-way lecture in which we are just imparting knowledge and you are silently imbibing it. That is not what I want. So let's just keep a very open discussion. I'm very sure there are no wrong answers. So whatever question I'm going to ask, there are no wrong answers. Please feel free to come forth with your doubts or share whatever experiences you like to share. So with this, I would like to first call Dr. Ritika on dais. She would be talking, and then next I'll be speaking on this topic. So Dr. Ritika, welcome so much. Come here.
थैंक यू। Just a second. Sorry. Thank you so much, Dr. Swaleha, and thank you so much for your hospitality and for having us. I'm Dr. Ritika Singh, Senior Resident in the Department of Psychiatry of Subharti Medical College. So today we have gathered to inform you about what we already know is the topic, World No Tobacco Day, और हिंदी में जस्ट हम उसको बोल सकते हैं विश्व तंबाकू नियंत्रण दिवस. So let us have a brief introduction about what is tobacco. Can anyone tell me how is it made? What exactly is it? Anyone from the audience? Yes? Go ahead. Like Dr. Swaleha said, there is no wrong answer. So you all can tell me. Okay. So tobacco is derived from a plant called Nicotiana. Okay. So उसकी लीव्स जो होती हैं उसको ड्राई किया जाता है और उससे टोबैको निकलता है जिसका एक्टिव कंपोनेंट इज निकोटीन. वन इम्पॉर्टेंट थिंग यू नोटिस दैट टोबैको का जो कल्टीवेशन होता है ना उसमें पानी कम लगता है, तो कंपैरेटिवली लोगों को इजी होता है उसको कल्टीवेट करना. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर कि तंबाकू की खेती इतनी ज्यादा होती है. अगेन अनदर थिंग इज हाउ डू वी ऑल कंज्यूम टोबैको. हम लोग किस किस तरीके से टोबैको कंजम्पशन करते हैं. Again, it's a question for you all. Can you tell me कैसे लेते हैं तंबाकू? Very good, smoking and chewing, right? And okay, so these are some of the forms कि smoke करते हैं. Smoke में बहुत सारे forms आ जाते हैं like cigarette, बीड़ी, चिलम. Then you have eating में आपका खैनी, जर्दा, ये सब चीजें हो गई. अगर स्टैंडर्ड की बात करें तो लोग हवाइन सिगार भी पीते हैं, उसके अंदर भी टोबैको होता है. सो हाउ इट हैज बिकम सो प्रिवेलेंट इन अवर सोसाइटी. आज से तो है नहीं इसका यूज. वी हैव बीन यूजिंग टोबैको सिंस टाइम इमेमोरियल इफ यू विल सी. सो हाउ हैज इट बिकम सो मच कॉमन इन करेंट सिनेरियो. सो इफ वी टॉक अबाउट इट, टोबैको यूज अगर कल्चरली देखें तो पहले ना हॉस्पिटैलिटी के लिए यूज किया जाता था. लोग घर में आते थे तो बीड़ी, सिगरेट ये सब चीजें दी जाती थी, पान दिया जाता था. अगेन एक अथॉरिटी फिगर को डोमिनेटरी फिगर को डिनोट करने के लिए, लाइक कि घर के चाचा ताऊ लोग हुक्का पी रहे हैं, घर का मेल मेंबर सिगरेट पी सकता है बिकॉज ही इज अ मेल. तो ये सारी चीज़ों ने बहुत प्रिविलेंट किया है. अगेन अनदर थिंग इज अवर रोल मॉडल्स जो मूवीज या टीवी सीरियल्स में दिखाए जाते हैं कि फिल्मों में हीरो स्मोक कर रहा है, तंबाकू खा रहा है, उसके बाद गुंडों से लड़ रहा है. सो दिस इज व्हाट वाज बीइंग पिक्चर्ड टू अस. और अभी के उसमें अभी कुछ टाइम पहले से बैन हो गया. पहले टूथपेस्ट में या मंजन जो आते थे उसमें भी टोबैको मिला होता था, which has been banned by the government of India. So this is how the use of tobacco has become so common in our current scenario. Another thing आपको बताएंगे कि टोबैको से हार्म क्या क्या हो सकते हैं. सो यू ऑल नो, आई गेस थोड़ा बहुत सबको पता होगा कि क्या क्या नुकसान तंबाकू कर सकता है. क्या नुकसान कर सकता है? वेरी गुड, कैंसर. और उसके अलावा हाँ ठीक, रेस्पिरेटरी डिजीजेस. ठीक है ठीक है, सबने लंग्स और इसके बारे में बोला. नाउ लेट अस सी हेड टू टो एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी इज इन्वॉल्व व्हेन वी कंज्यूम टोबैको. तो हेड से शुरू करते हैं. ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम या ब्रेन. सो देयर टोबैको जो होता है ना, ब्रेन में जो ब्लड वेसल्स होती है उसको कंस्ट्रिक्ट करता है. ठीक है, उससे क्या होगा, जो ब्लड फ्लो जाएगा ब्रेन में वो रुकेगा. अब किसी पर्टिकुलर एरिया ऑफ ब्रेन अफेक्ट हो गया तो उसकी वजह से लकवा पड़ सकता है, जिसको पैरालिसिस हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है. कोई पर्टिकुलर एरिया ऑफ ब्रेन, सपोज फॉर एग्जाम्पल जहाँ विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उस जगह की ब्रेन वेसल कंस्ट्रक्ट हो गई, कुछ प्रॉब्लम आ गई तो आपके दिखने में दिक्कत आ सकती है. ठीक, इसके अलावा हम न्यूरो की बात तो कर ली. साइकाइट्रिकली अगर हम बात करें, एक तो डिपेंडेंस हो गया, दूसरी मेंटल इलनेसेस हो गई. मेंटल इलनेसेस का बहुत ज़्यादा कोरिलेशन होता है टोबैको यूज से. ठीक, टोबैको अगर आप देखें, एडिक्शन, जो भी टोबैको फ्रिक्वेंटली यूज कर रहे हैं, एडिक्शन और मेंटल इलनेस दोनों की तरफ जाते हैं. एडिक्शन की वजह से भी आपके बिहेवियरल चेंजेस आते हैं. आपको अगर लत लग गई है किसी चीज़ की
तो व्हाट यू विल डू कि चीजें नहीं मिल रही है तो आपको चिड़चिड़ापन होगा स्वभाव में, तलब उठती रहेगी, सर दर्द होगा, आपको छोटी छोटी बातों में गुस्सा आने लगेगा, आपका कंसंट्रेशन नहीं होगा, नींद में दिक्कतें आएंगी। तो दीज आर ऑल द थिंग्स जो कि तंबाकू के डिपेंडेंस या किसी भी तरीके की लत से हो सकता है। अभी सर की बात करें, लेट अस कम टू ओरल कैविटी। ओके, मुंह में क्या होगा? वेरी गुड, अल्सर। स्टेनिंग होती है, लिप्स के अराउंड स्टेनिंग हो सकती है, टीथ की स्टेनिंग हो सकती है, मुंह में ओरल केराटोटिक पैचेस या अल्सर्स हो सकते हैं, एंड ओरल कैंसर्स जो आप लोगों को पता ही है, राइट। लेट अस गो फर्दर डाउनवर्ड, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यू ऑल टोल्ड मी अबाउट इट। सो व्हाट हैपेंस इन रेस्पिरेटरी सिस्टम? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट भी इन्वॉल्व होगा, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट भी इन्वॉल्व होगा। अभी सिर्फ एक्टिव स्मोकिंग ही नहीं, पैसिव स्मोकिंग इज ऑल्सो अ टर्म, राइट, जिसमें अगर आपके आसपास वाला जो इंसान है उसको भी धुआं मिल रहा है अगर आप तंबाकू का इस्तेमाल कर रहे हैं। सो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एक खराश सी बने रहेगी, कुछ ना कुछ इन्फेक्शन सा लगा रहेगा। फिर नीचे जाते हैं तो आपका रेस्ट्रिक्टिव या ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीजेस जैसे सीओपीडी हो गया, इन सब चीजों को बढ़ावा मिलता है। फिर लंग कैंसर, आप सभी को पता है। अच्छा, लंग कैंसर किस वजह से होता है? क्या कंपोनेंट होता है तंबाकू में कि लंग कैंसर कॉज करता है? चलो ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, लास्ट में आप लोग बताएंगे, ठीक है, आंसर इसका, ठीक है। ओके, सो नाउ वी टॉकिंग अबाउट एक्सट्रीमिटीज की बात करते हैं। हाथ पैरों में भी क्या कुछ करता है हाथ पैरों में तंबाकू का यूज? नमनेस, टिंगलिंग, और अच्छा, किसी को बर्जर्स डिजीज पता है? पता है क्या होता है? ठीक है, व्हाट हैपेंस इन बर्जर्स डिजीज, जैसे मैंने बोला खून की धमनियों को सिकुड़ देता है, वेजो कंस्ट्रक्शन करता है। तो अगर वही आपके हाथ पैरों पे जो खून की धमनियां जा रही है उनका कंस्ट्रक्शन हो गया तो उस एरिया को खून नहीं मिलेगा, तो हाथ या पैर जो भी एरिया है वो काला पड़ने लगता है। तो धीरे धीरे वो इतना खराब हो जाता है कि उसको एम्प्यूटेट करने की भी जरूरत पड़ जाती है। तो अगर आप कल के दिन अपनी प्रैक्टिस में कोई ऐसा इंसान देखते हैं जिसको बर्जर्स है, आप पहचान में आते हैं, तो सबसे पहले तो उसको यही सजेस्ट करना है कि क्विट टबैको, क्योंकि नहीं छोड़ोगे तो अभी उंगली गई है, फिर पूरा हाथ भी जा सकता है। गेटिंग इट? ओके, अभी बहुत बार ये देखा गया है कुछ स्टडीज में कि टोबैको यूज से फर्टिलिटी रेट भी कम होता है फीमेल्स में। ओके, सो ओवरऑल अगर हम देखें टोबैको की वजह से उसके बाद कैंसर और डेथ सबको पता है, तो डिजीज भी कॉज करता है टोबैको, डिसेबिलिटी भी कॉज करता है और डेथ भी कॉज करता है। सो इट इज दिस हार्मफुल। इज इट क्लियर नाउ? ओके, अभी इस बार की जो थीम है, जैसे सबने भी बोला कि प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंफ्लुएंस, कि बच्चों को क्यों स्पेशली बचाने की बात करिए इस बार। सी, द यूज ऑफ टोबैको इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली कॉमन इन यंग एडल्ट्स और चिल्ड्रन। व्हाई ऐसा क्यों हो रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर टारगेटिंग द यंग एडल्ट। क्यों? बिकॉज दे नीड, टोबैको इंडस्ट्री को भी अपना इजी मनी इंटरफ्लो चाहिए कि एक लंबे समय तक ऑडियंस बने रहेगी उनकी। अभी एक 60 साल का इंसान सिगरेट फूकेगा और एक 16 साल का बच्चा सिगरेट फूकेगा, तो दोनों में से पैसा जो 16 साल का फूक रहा है लंबे समय तक फूकेगा उससे ज्यादा मिलने वाला है। प्लस दे आर इजी टू टारगेट एंड दे गेट इन्फ्लुएंस्ड इजीली। उनको सोशल मीडिया के बारे या स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के बारे जल्दी से ज्यादा टारगेट किया जा सकता है। एंड व्हाट एल्स? ठीक है, सी दे आर यंग माइंड, उनका माइंड बहुत ससेप्टेबल है डिपेंडेंस की तरफ। ओके, वो समझ नहीं पाएंगे। ऑलराइट, तो ऐसे में रोल किसका आता है? रोल अगर हम बात करें, एक तो पेरेंटिंग, एक खुद का ऑब्वियसली, और एक पेयर प्रेशर या अपने दोस्तों के साथ जिनके साथ आप उठ बैठ रहे हैं। पेरेंटिंग का क्या रोल है बताएगा कोई? वेरी गुड, घर पे कोई बुलाता है, ठीक है। सो सबसे पहले तो बहुत ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम पेरेंट्स आर अनअवेयर। जस्ट अ सेकंड, दिस इज कमिंग आउट। पेरेंट्स आर अनअवेयर कि बच्चा टोबैको कंज्यूम भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, एक हेल्दी एनवायरनमेंट रखना जिसमें आपका बच्चे के बारे में आपको पता हो। सो नाउअडेज व्हाट वी आर सीइंग कि अगर स्कूल की तरफ से कोई कंप्लेन आती है, कॉलेज की तरफ से कोई कंप्लेन आती है, या टीचिंग में कोचिंग वाले सर ने कंप्लेन कर दी कि बच्चा थोड़ा खराब हो रहा है, कि ध्यान नहीं दे रहा, तो माँ बाप को बुरा लग जाता है कि नहीं, आपका काम है, आप उसे समझाइए। वो लोग ये नहीं देखते कि क्या सच में बच्चा किसी गलत राह में जा रहा है।
ठीक है, तो ये ध्यान देना जरूरी है कि बच्चों की संगत क्या है, इस पे ध्यान देना जरूरी है। एक घर में टोबैको फ्री इन्वायरमेंट होना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस घर में पेरेंट्स का या किसी एल्डरली फिगर का टोबैको यूज कॉमनली होगा, तो बच्चे भी सोचेंगे चलो ये तो कॉमन है, हमारे घर में पीते हैं, हमारे घर में कंज्यूम करते हैं, तो हम भी क्यों ना टोबैको यूज करें। सो दिस इज समथिंग विच शुड बी केप्ट इन माइंड। फिर अर्ली रिकॉग्नाइजेशन, अगर आपको लग रहा है कि बच्चे को कुछ लत लग रही है, कुछ टम्बाकू कंज्यूम कर रहा है, एक उसको एजुकेट करना, एक हेल्दी कम्युनिकेशन रखना, और अर्ली टू अर्ली अगर हेल्प की जरूरत है तो हेल्प के लिए जाना। ठीक, ये तो हो गया पेरेंटिंग का इन्फ्लुएंस। नेक्स्ट भी आई टोल्ड यू कि पेयर प्रेशर। अभी हॉस्टल में आप लोग रहते हैं, लड़के भी रहते हैं, लड़कियां भी रहती हैं, एक रूम में 3 लोग रह रहे हैं, अब 2 उनमें से सिगरेट पीते हैं, एक नहीं पीता, उसको क्या लगता है अरे मैं छूट तो नहीं रहा हूँ कहीं, तो ये सब मेरे दोस्त पी रहे हैं, मैं कूल नहीं दिख रहा हूँ, है ना, कि मैं तंबाकू नहीं खा रहा हूँ। सो ये रियलाइज करना कि क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए गलत है, ये इंपॉर्टेंट है, राइट। इंस्टेड ऑफ सेइंग नो, वो बच्चा भी उस ट्रायंगल का पार्ट बन जाता है कि अभी ठीक है, अभी मैं भी इसका हिस्सा हूँ। सो द नीड ऑफ गेटिंग एक्सेप्टेड इन अ ग्रुप, ये चीजें भी लोगों को बहुत ज्यादा गलत पदार्थों की तरफ, नशे की तरफ ले जा सकती हैं। सो वन हैज टू रियलाइज कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, एंड टेल दी अदर लोग ऑल्सो कि जो लोग कंज्यूम कर रहे हैं कि दिस कैन बी इंजूरियस टू हेल्थ। So the purpose of the camps which are being organized, the purpose of the talks which are being organized is to tell you that कि अगर आपके आसपास आपको ऐसे लोग दिखते हैं, आपके छोटे भाई बहन, आपके बड़े भाई बहन कुछ ऐसे दिखते हैं, तो make them aware कि what harm is it going to cause to them, right? Okay. Next, I like to inform you a little bit about the government initiative जिसको हम बोलते हैं कोटपा एक्ट, ठीक है। तो it is cigarette and other tobacco product act. So it deals with the advertisement, the selling and everything of the tobacco and other related products. So उसमें ना कुछ चीजें हैं, जैसे कि it is banned कि पब्लिक प्लेस में कोई स्मोक करेगा तो वो बैन है। So it is a punishable and a criminal offense, तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं। Selling of tobacco and tobacco related products to a minor is banned, right? हैविंग किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के आसपास अगर तंबाकू बिक रहा है, सिगरेट बिक रही है, ये भी बैन है। जो भी आप देखते होंगे कि सिगरेट या तंबाकू मिलता है, उसको उसमें बड़ी सी पिक्टोरियल वार्निंग होती है, तो दैट इज समथिंग कि वो पिक्टोरियल वार्निंग अभी कोटपा एक्ट के अंदर ही आई है कि मैक्सिमम पार्ट आपका कवर करना चाहिए। और एक और चीज़ है कि जो भी सिगरेट या तंबाकू होता है उसमें कितना निकोटीन, कितना तार होना चाहिए, जो तार रिस्पॉन्सिबल होता है खतरे के लिए, वो कितना होना चाहिए, ये चीज़ें पता होंगी। ये इस चीज़ के ऊपर भी रेगुलेट किया गया है। तो ये कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इनिशिएटिव लिए गए हैं। इसके अलावा वी हैव टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम, तो उसके अंदर भी बहुत सारे अवेयरनेसेस फैलाई जाती हैं, बहुत सारा और भी चीज़ें जो कवर की जाती हैं। अभी हमने इतना तो देख लिया कि टोबैको क्या नुकसान करता है, कैसे परेशान करता है, हम करें क्या इसके लिए, हाउ डू वी मैनेज इट, ठीक है। मैनेजमेंट आपका दवाइयों से भी हो सकता है, बेसिकली दवाइयों से, और नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट भी हो सकता है। दवाइयों की बात करें तो वी हैव निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है, ठीक है। उसके अंदर आपके बहुत तरीके के च्युइंगम्स आते हैं, पैचेस आते हैं, टोबैको निकोटीन पैचेस, वी हैव लॉजेंजेस, नेजल स्प्रे, और ये सब चीज़ें। मोस्ट कॉमन टोबैको पैचेस और च्युइंगम्स, जो निकोटीन गम्स है वो RMTCP के अंडर भी आपका कोई जो वर्कर होगा, सोशल वर्कर होगा, उनसे भी आपको मिल सकता है। तो इसका मेन उद्देश्य ये है कि आपको जो तार मिलता है ना तंबाकू के, उसमें जो तार होता है वो आपके शरीर में ना जाए, और जो निकोटीन है उसका हम कंजम्पशन है उसको धीरे धीरे टेपर डाउन कर सकें। गेटिंग इट? समझ में आ रहा है ना? ठीक है। इसके अलावा वी हैव एंटी क्रेविंग की तलब कम करने वाली दवाइयाँ कुछ होती हैं। अगर आपका कुछ व्यवहारिक रूप से आप परेशान हो रहे हैं, तंबाकू अचानक से छोड़ देते हैं, उसके लिए दवाइयाँ होती है। सर दर्द हो गया, नींद नहीं आ रही है, उसके लिए दवाइयाँ होती हैं। इसके अलावा नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, जो कि अभी यंग एज में समझ जाएं तो बहुत ज़रूरी हो, अच्छा होगा। कोई बात नहीं, आवाज़ आ रही है आप लोगों को मेरी? लास्ट तक आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, आ रही, ठीक है।
तो उसमें क्या करना होता है, जो नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है, थेरेपीज जिसको हम बोलते हैं, या फिर नो प्रॉब्लम, ओके ओके, थैंक यू। सो नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या करना होता है, आपको ये समझना है कि जो थेरेपीज या फिर हम काउंसलिंग जिसको बोलते हैं मोटिवेशनल एनहांसमेंट थेरेपी हो सकती है, फैमिली थेरेपी हो सकती है, ग्रुप थेरेपी हो सकती है, और क्या हो सकता है, लाइफस्टाइल चेंजेस और योगा मेडिटेशन, इनका बहुत रोल देखा गया है। तो छोटी छोटी चीज़ें अगर हम ध्यान रखें तो वी कैन प्रोटेक्ट आवरसेल्फ as well as our environment and family from the harmful use of tobacco. Okay, correct. So now I'll invite Dr. Swaleha to say few words. Thank you so much. Thank you, Dr. Ritika, for such an enlightening lecture. And continuing in the same topic, or continuing in the same flow, I would like to say that again remind you that the theme for this year is protecting children from tobacco industry interface. And why was this theme chosen? Because we know that children are the future generations, and we want a future to be much better, free from cancer and all the diseases that Dr. Ritika has said. So we want the burden to be less. So for a better future, focusing on children will definitely help. So for a multitude of reasons, this theme has been chosen, and it is very, very common. If अगर इंडिया में देखा जाए तो इंडिया में भी टोबैको यूज का प्रिवेलेंस ऑलमोस्ट 10 to 21% है। जैसे सिगरेट या जो स्मोक फॉर्म ऑफ टोबैको है, 10% भी बहुत ज़्यादा होता है। जैसे इस रूम में 100 बच्चे हैं तो एटलीस्ट 10 लोग तो टोबैको यूज़ करते हैं। दैट इज़ व्हाट 10% मीन्स। सो दैट इज़ क्वाइट हाई, और इसी को कम करने की बहुत बहुत आवश्यकता है। वी नीड टू डिक्रीज दिस बिकॉज if it keeps increasing, it will become a very big health hazard. It has already begun, but इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। एक मैं आपको बताना चाहती हूँ थोड़ा बहुत कि कैसे टोबैको बच्चों में डेवलप होता है या कैसे एडिक्शन बनता है। बिकॉज आप देखते हैं कि कुछ लोग 1-2 सिगरेट लेके बंद कर देते हैं, और कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा लेते हैं और उसके बिना जी नहीं पाते हैं। तो लेट्स गो इनटू द स्टेजेस में देखा जाए तो स्टेज 1 है एक्सपेरिमेंटेशन स्टेज, ठीक है। एंड एक्सपेरिमेंटल स्टेज स्पेशली बच्चों में, चिल्ड्रन में इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज व्हेन वी आर यंग वी लाइक टू एक्सपेरिमेंट न्यू थिंग्स, कि आज सुशी खा के देखते हैं कि ये कैसा होता है। तो नई नई चीज़ें हमें ट्राई करना अच्छा लगता है, एंड वो कोई बुरी बात नहीं है, बट experimenting with dangerous things is very bad. So whenever a child or a young person thinks that I want to experiment with tobacco, आप वहीं पे अगर उसको रोक देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। So I would like to tell all of you, or you should also tell as many people as possible, do not experiment with tobacco. ये experiment करने की चीज़ है ही नहीं, तो यहाँ पे रोक देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट स्टेज होता है ओकेजनल यूज़। ओकेजनल यूज़ मीन्स यू आर गोइंग टू अ पार्टी और वहाँ पे सब लोग स्मोक कर रहे हैं तो आपने स्मोक कर लिया। यू डोंट वांट टू फील लेफ्ट आउट, लाइक डॉक्टर रितिका सेड कि सब कूल बच्चे स्मोक करते हैं तो चलो हमें भी वो कूल बच्चों का पार्ट बनना है तो हम भी स्मोक कर लेते हैं। तो दिस इज़ अगेन ओकेजनल यूज़। इसको भी अगर रोका जाए तो बहुत ईजी है क्विट करना। So again, if somebody is occasionally using, tell them to just stop it, and it is easier again to stop at this stage. The next stage is a little bit more difficult, that is regular use. Regular use का मतलब है daily use कर रहे हैं, and regular use ही आगे जाके dependence बनता है, जो हम tobacco dependence बोलते हैं।
and that needs multi disciplinary treatment. उसका treatment काफ़ी challenging होता है. तो ये लास्ट स्टेज तक अगर ना आए तो बेटर है, बट लास्ट स्टेज आ भी गई या टोबैको डिपेंडेंस हो भी गया तो उसका भी ट्रीटमेंट संभव है, उसको छोड़ सकते हैं. तो हेल्प पॉसिबल है, उसका ट्रीटमेंट भी पॉसिबल है, ये बताना भी लोगों को ज़रूरी है. तो आप क्या क्या बताएंगे, क्या क्या 3 स्टेजेस है? स्टेज 1 है एक्सपेरिमेंटल. तो एक्सपेरिमेंटल स्टेज में आप क्या बोलोगे? कि एक्सपेरिमेंट करना ही नहीं है, ठीक है. करना है तो कोई और दूसरी चीज़ें, आप खाने पीने की चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट स्टेज क्या है? ओकेजनल यूज. ओके, सो पार्टीज एंड ये सब. इसमें आप क्या बोलोगे? अगेन स्टॉपिंग इज इजी, ठीक है. थर्ड स्टेज क्या है? रेगुलर यूज एंड डिपेंडेंस. तो इसमें यूजुअली साइकेट्रिस्ट का रोल होता है, इसमें यूजुअली साइकोलॉजिस्ट का, काउंसलिंग का. तो इसमें भी पॉसिबल है कि हेल्प किया जाए, या अगर डिपेंडेंस डेवलप हो गई है तो उसमें भी पॉसिबल है कि ट्रीटमेंट हो पाए, ठीक है. कंटिन्यू करूं? सबको सुनाई? अच्छा हाँ, हो ही गया, ठीक है, ठीक है. तो नाउ दैट अब थोड़ा सा हम डिपेंडेंस पे ही फोकस करते हैं, बिकॉज इसका क्या क्या ट्रीटमेंट है, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है. तो एक नज़रिया इसको देखने का ऐसा है कि दिस इज़ अ बायो साइको सोशल प्रॉब्लम, ठीक है. तो क्या है मैं बताती हूँ. बायो इज़ बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल. तो हमारा जो फोकस होता है वो भी ये तीनों चीज़ों पे होना चाहिए. तो बायोलॉजिकल मतलब क्या? बायोलॉजी है आपके बॉडी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है. तो इट इज़ वेरी शॉकिंग, या आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि जब कोई स्मोक करने लगता है टोबैको या च्यू करने लगता है, उसके ब्रेन में एक्चुअली चेंजेस हो रहे हैं. कुछ केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, कुछ फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं. ये चेंजेस को हम रिवॉर्ड पाथवे बोलते हैं, ठीक है. तो जब भी कोई स्मोक करता है तो वो रिवॉर्ड पाथवे में बहुत सारा डोपामिन रिलीज होने लगता है, ठीक है. और ये डोपामिन ब्रेन को अच्छा लगता है, बॉडी को अच्छा लगता है, क्योंकि डोपामिन से एक हाई मिलता है, एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है. पर ये हो रहा है आपके ब्रेन के बायोलॉजिकल लेवल पे. तो आपके ब्रेन में एक्चुअली केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, विच इज़ वेरी वेरी डेंजरस. और इसीलिए अगर कोई चाहे कि मैं अपने विल पावर से रोक लूँ, या मैं सोचूं कि मैं खुद ही स्मोक नहीं करूँगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं, क्योंकि उसका जो रिवॉर्ड पाथवे है वो डोपामिन क्रेव करने लगता है. तो वो डोपामिन पाथवे उसको चुपचाप बैठने नहीं देता है, वो बोलता है नहीं जाओ सिगरेट पियो या तंबाकू खाओ. तो ये इसकी वजह से हमें कुछ मेडिसिन्स देना भी ज़रूरी होता है. तो मेडिसिन्स में जैसे डॉक्टर रितिका ने बोला, निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपीज़ होती है, जो वही रिवॉर्ड पाथवे को जाके हल्का सा स्टिमुलेट करता है कि एटलीस्ट वो रिवॉर्ड पाथवे शांत हो जाए, परेशान ना करे, ठीक है. और यही रिवॉर्ड पाथवे की वजह से क्रेविंग भी होती है, और क्रेविंग की वजह से बार बार वो स्मोक करने जाता है. तो इसीलिए ये रिवॉर्ड पाथवे को ठीक करने के लिए हम मेडिसिन्स देते हैं, निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी जो बोलते हैं. इसमें पैचेस भी आते हैं. पैचेस यानी कि आपको बस पील करना होता है, स्किन पे लगाना होता है, धीरे धीरे वो निकोटीन आपकी बॉडी में जाता है, ठीक है. च्युइंगम होता है जिसमें थोड़ा च्यू करना होता है, और उसमें उसके थ्रू थोड़ा थोड़ा निकोटीन जाता है. कुछ कुछ मेडिसिन्स भी होती हैं, कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स है जैसे ब्रूप्रोपियोन है,
और वैरेनिक्लाइन है, बहुत सारे मेडिसिन्स भी डेवलप हुए हैं टू हेल्प पीपल क्विट टोबैको। बट ये मेडिसिन्स के लिए इट इज़ एडवाइस दैट द पेशेंट शुड कम टू अ साइकियाट्रिस्ट, एंड ये मेडिसिन साइकियाट्रिस्ट ही प्रिस्क्राइब करे तो अच्छा है, क्योंकि उसके काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होते हैं। तो ओवर द काउंटर निकोटीन रिप्लेसमेंट मिल जाता है, बट जो बाकी मेडिसिन हैं उसके लिए जस्ट गो टू अ साइकियाट्रिस्ट, सीक हेल्प फ्रॉम अ साइकियाट्रिस्ट, एंड दे विल प्रिस्क्राइब इट इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड। सो दिस इज़ वन एस्पेक्ट। ये तो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट हो गया। बाकी दोनों एस्पेक्ट्स क्या है? साइकोलॉजिकल एंड सोशल। ठीक है, तो सोशल एस्पेक्ट पे जाते हैं। सोशल एस्पेक्ट में यही होता है कि फिल्म स्टार्स हैं या कोई रोल मॉडल्स हैं जो स्मोक कर रहे हैं, तो लोगों को लगता है कि अरे मुझे भी ऐसा बनना चाहिए, या मैं स्मोक करूँगा तो ऐसे बन जाऊँगा। या कॉलेज में पीयर प्रेशर होता है कि अरे सब लोग स्मोक कर रहे हैं, तुम ही नहीं स्मोक कर रहे हो। तो ये पीयर प्रेशर हो गया, या रोल मॉडल्स को देख के जो बच्चे स्मोकिंग के टूवर्ड्स जाते हैं, दिस इज़ द सोशल एस्पेक्ट। तो यस, इसको भी डील करना ज़रूरी है, और इसको डील करने के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स रखते हैं। कॉलेजेस में जा जाके हम उनको समझाते हैं कि क्या क्या हार्म्स होते हैं। तो सोशल एस्पेक्ट को डील करने के लिए द गवर्नमेंट प्रोग्राम्स एंड द अवेयरनेस प्रोग्राम्स आर इनफ। ठीक है, लास्ट आता है साइकोलॉजिकल। ठीक है, तो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट में द की पॉइंट इज कि लोग स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, लोगों ने देखा है कि अरे ये स्ट्रेस होता है, या कोई मूवीज़ वगैरह में आपने देखा कि जब भी स्ट्रेस होता है तो हीरो स्मोक करने लगता है। तो ये एक हैबिट जैसे बन जाती है, ये एक कोपिंग मैकेनिज्म बन जाता है कि जब भी हमें स्ट्रेस होगा तो हमें स्मोकिंग करना है, स्मोकिंग से स्ट्रेस कम हो जाएगा। ठीक है, इससे बड़ी गलतफहमी दुनिया में कुछ नहीं है। ठीक है, तो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन दिस इज़ अ साइकोलॉजिकल रीज़न फॉर टोबैको डिपेंडेंस और वाई पीपल स्मोक और च्यू टोबैको, दैट दे आर नॉट एबल टू डील विद देयर डे टू डे स्ट्रेसेस। और स्ट्रेस तो किसकी लाइफ में नहीं होता है, स्ट्रेस तो सबको ही होता है, सब अलग अलग वे में डील करते हैं। कुछ लोग स्मोकिंग से डील करते हैं और फिर बाद में कोई भी उनको स्ट्रेस आता है तो उन्हें लगता है कि हमें स्मोक ही करना चाहिए, इसके लिए कोई और ऑप्शन नहीं है। तो इसका हम ट्रीटमेंट क्या क्या दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, वेरी वेरी गुड। ये तो बहुत ही टेक्निकल आंसर हो गया। यस, बिहेवियरल थेरेपीज। सो काउंसलर्स जो होते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, उनके पास बहुत सारी थेरेपीज होती है। एक थेरेपी जैसे यू हैव सेड बिहेवियर थेरेपी, तो ये तो बहुत हेल्पफुल होता है। ये प्रूवन है, रिसर्च ने प्रूव किया कि दिस इज़ वेरी इफेक्टिव। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी भी होता है। देन कुछ थोड़ा लेस टेक्निकल में जाए तो रिलैक्सेशन टेक्निक्स होते हैं। तो पेशेंट को जस्ट डील करना सिखाते हैं कि जब भी आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो, सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करो। ठीक है, इन ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस में जो बहुत सिंपल और इफेक्टिव है उसको बॉक्स ब्रीदिंग बोलते हैं। ठीक है, तो बॉक्स ब्रीदिंग क्या होता है? यू इमेजिन अ बॉक्स। ठीक है, एक स्क्वायर बॉक्स है, वो बॉक्स में आपको इनहेल करना है 4 सेकेंड्स, होल्ड करना है 4 सेकेंड्स, एक्सहेल फॉर 4 सेकेंड्स एंड देन होल्ड फॉर 4 सेकेंड्स। ये बहुत सिंपल है बट इट इज़ वेरी इफेक्टिव। ये एक सिंपल ब्रीदिंग टेक्निक करते हैं तो एटलीस्ट उस टाइम पे जो हम क्राइसिस सिचुएशंस बोलते हैं, उस टाइम पे ये सिंपल ब्रीदिंग टेक्निक्स अगर करें तो एटलीस्ट उस टाइम के लिए पेशेंट काम हो जाता है। और भी थोड़ी मल्टी स्टेप ब्रीदिंग टेक्निक्स होती है जिसको जेकबसन्स प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन कहते हैं, JPMR। तो ये 10-20 स्टेप्स होते हैं, बट इसके बहुत सारे YouTube आपको वीडियोस मिल जाएंगे, गूगल पे स्टेप्स मिल जाएंगे कि वो कैसे कर सकते हैं। और बाकी फिर प्राणायाम ऑल्सो वर्क्स वेरी वेल, योगा वर्क्स वेरी वेल, समटाइम्स म्यूजिक हेल्प्स पीपल काम डाउन। सो
there are other coping mechanisms which are available, which are more effective and which are not harmful, जो आपको कैंसर नहीं देंगे. तो you should try to teach people as much as possible that whenever you are stressed, go towards these techniques. Playing sports, exercising also helps a lot. एक्सरसाइज से भी एक डोपामिन हाई मिलता है, जो सेम तो नहीं, स्मोकिंग से थोड़ा हाई ज़्यादा मिलता है, बट एक्सरसाइज अगर हाई इंटेंसिटी किया जाए तो जितना हाई इंटेंसिटी हो उतना डोपामिन भी हाई होता है. तो इंस्टेड ऑफ स्मोकिंग जस्ट एक्सरसाइज, उससे आपका कार्डियो फिटनेस भी बढ़ेगा, आपका वेट कंट्रोल होगा, बीपी शुगर सब मैनेज हो जाएगा. तो एक्सरसाइज इज अनदर वेरी गुड ऑप्शन फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट. ठीक है. सो दिस वॉज अ वेरी सिंपलिस्टिक वे ऑफ टीचिंग ऑल ऑफ यू कि स्मोकिंग क्यों करते हैं, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल रीजन से, और उसका ट्रीटमेंट भी ये तीनों वे में अगर सोचा जाए या देखा जाए तो बहुत सिंपल वे में हो सकता है. तो इट इज़ नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड, नॉट वेरी डिफ़िकल्ट. लोगों को बोलो कि जितना हो सकता है आप स्मोक क्विट करने की कोशिश करिए. स्मोकिंग क्विट जितने जल्दी करेंगे उतना अच्छा है. लेकिन अगर उनसे नहीं हो पा रहा है तो कम टू अ साइकियाट्रिस्ट. वी विल अकॉर्डिंग टू द पेशेंट प्रोफाइल वी विल गिव द ट्रीटमेंट. तो ये आना बहुत ज़रूरी है. ठीक है. तो जस्ट एज अ टेक होम मैसेज या एज अ कंक्लूडिंग रिमार्क आई वुड लाइक टू से कि अगर आप स्मोक नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ एक्सपेरिमेंट ना करें. अगर ओकेजनल स्मोक कर रहे हैं तो प्लीज़ इमीडिएटली स्टॉप करें बिफोर डिपेंडेंस डेवलप हो जाए. और हाँ, अगर आपको डिपेंडेंस है या आपको लग रहा है कि स्मोकिंग और टोबैको च्यूइंग से बहुत ज़्यादा कंट्रोल आपका नहीं हो पा रहा है तो कम टू अ साइकियाट्रिस्ट. वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प, एंड help is possible. We have helped innumerable number of people quit tobacco and will be helping them in future also. So please raise awareness as much as possible. आज का ये टॉक वो अवेयरनेस के लिए ही था. तो डॉक्टर रितिका ने और मैंने आपको जो इम्पार्ट किया है नॉलेज, आप जितने ज़्यादा लोगों को जाके सिखाएंगे, बताएंगे, उतना अच्छा होगा. एंड लेट्स होप for a tobacco-free society one day. That is the long-term goal or long-term aim. And with this, I would like to conclude my lecture. Thank you so much for listening. And I think अभी अगर आपके मन में कोई doubts होंगे तो I think me and Dr. Ritika, we would like to have a question-answer session जिसमें आपके कोई doubts है तो हम answer करें. ठीक है. डॉक्टर रितिका, प्लीज ज्वाइन मी ऑन स्टेज. बताइए. आंसर तो रॉन्ग नहीं होता है पर क्वेश्चन तो कभी रॉन्ग नहीं होता है. तो क्वेश्चन तो पूछ ही सकते हैं. बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं सोचा है. आई थिंक कल्चर और रीजनल पे बहुत सारी बड़ी प्रॉब्लम होगी. बिल्कुल. हम कभी ट्रैवल करते हैं स्पेशली नॉर्थ वेस्ट, हम लोग वेस्ट में रहेंगे. इसमें आप जाओ पूर्वी उत्तर प्रदेश, वहां पे ड्राइवर भी होगा कोई और 5 स्टार होटल्स के होंगे. पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं मैं. सब लोग प्यार बोलने लगे आजकल. आप तो झारखंड लोग हैं ना, झारखंड में सीआईपी एक सेंटर है, सेंट्रल सेंटर है. बिल्कुल. वहां पे लेके वहां पे आईपी ओपीडीज लोग लगे 1000-1500. हम लोगों ने वहां पे 6 मंथ पोस्टिंग की. छोटे-छोटे बच्चे वहां पे दे आर यूजिंग टोबैको बिकॉज़ कल्चर घर में सब लोग यूज कर रहे हैं. आप अगर बस स्टैंड जाओ, रोडवेज देखो तो रोडवेज पे ड्राइवर से पूछो सर ये बस कहां जाएगी, तो नॉर्मली मतलब आप देख सकते हैं कोई नहीं बचा हुआ. और उनके लिए दैट इज नॉट. घर में बाहर कहीं भी देखो दैट इज नॉट. तो ये क्वेश्चन तो आप कहते होना चाहिए क्यों मैडम वहां पे हम लोग अवेयरनेस कैसे देंगे? उनको तो डर नहीं लगता, तो अवेयरनेस देंगे कैसे? बिल्कुल. और काम भी है, बहुत बड़ी लार्ज पॉपुलेशन उससे अफेक्टेड है ना. स्पेशली मैं जो एरियाज आपको गिनवाए हैं बिकॉज़ लोकल प्रोडक्शन है. प्लांट्स की जो मैं आपने बोला है, प्लांट एक प्लांट होता है उसकी भी लोकल प्रोडक्शंस हैं. वो लोग कर रहे हैं, गवर्नमेंट परमिशन दे रही है. और कुछ
आप बेनिफिशियल यूज के लिए दे रही है बट दे आर यूजिंग इट रॉन्ग, तो वो क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं एवरीबॉडी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे सर ने बोला ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि सोशली ये इतना एक्सेप्टेबल हो गया है, स्पेशली रूरल पॉपुलेशन में। गांव में आप जाओगे तो बोलते हैं कि तंबाकू थोड़ा सा चबाएंगे तो पेट साफ रहेगा। तो ये तो बहुत ही कॉमन है कि हम फिर उन्हें लगता है कि डॉक्टर बोल रहे हैं तंबाकू छोड़ दो, तो उनको लगता है फिर हमारा पेट ही साफ नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो बहुत कॉमन है। तो देखिए चैलेंजेस तो बहुत आएंगे एंड ईच एंड एवरी पर्सन जिसको आप अवेयर कराओगे, हर पर्सन का अपना रीज़न रहेगा और अपना एक रेजिस्टेंस रहेगा। तो वो रेजिस्टेंस को भी हम अपने वे में कैसे सिखाएं। जैसे अगर वो बोलते हैं कि हमारा पेट साफ नहीं हो रहा है, तो पेट साफ होने के लिए केला खा सकते हैं, सैलड्स खा सकते हैं, ठीक है बहुत। और अगर हाँ हाँ क्या अच्छा नहीं, बनानास और फ्रूट्स इन जनरल, फ्रूट्स हैव अ वेरी हाई फाइबर कंटेंट, और फाइबर आपका वाटर सोख लेता है, जो भी जीआईटी में वाटर होता है, और उससे बाउल मूवमेंट्स होते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शंस सोसाइटी में है कि बनाना से कॉन्स्टिपेशन होता है और तंबाकू से नहीं होता है। इनफैक्ट टोबैको डिक्रीजेज योर गैस्ट्रिक मोटिलिटी। तो तंबाकू से एक्चुअली कॉन्स्टिपेशन होता है, बट वो पूरे जेनरेशन से वो सीखते आ रहे हैं कि तंबाकू से पेट साफ होता है। तो एक वो साइकोलॉजिकल उनका बन जाता है कि जब तक टोबैको नहीं खाएंगे तब तक हमारा पेट साफ नहीं होगा। तो हाँ, रेजिस्टेंस आएगा, आपको एक बार बोलना पड़ेगा, 10 बार 100 बार बोलना पड़ेगा, पर बोलना हमारा काम है, लोगों को अवेयर कराना काम है। और हाँ, अगर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो कॉन्स्टिपेशन के बहुत सारे मेडिकल और सर्जिकल कॉजेज़ भी होते हैं। तो रादर देन टेकिंग टोबैको, अगर वो डॉक्टर के पास आके वो कॉजेज़ देखें कि कोई इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, कोई और रीज़न तो नहीं है, बट वेरी कॉमनली इट इज़ जस्ट अ डाइटरी रीज़न। हमारे डाइट में इतना फाइबर ही नहीं होता है कि रेगुलर बाउल मूवमेंट्स हो। तो इंक्रीजिंग फाइबर इज़ एक्चुअली द, आई मीन आई एम नॉट अ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, वो ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे, बट सिंपल वे में देखा जाए तो आई थिंक फाइबर इज आपका गट मूवमेंट बेटर है, राइट। अच्छा, आप लोग तो सवाल पूछ रहे हैं, मैं जनरल नॉलेज का सवाल आपसे से पूछती हूँ। आप लोग मूवी देखने जाते हैं? अच्छा, तो मूवी के शुरू होने से पहले दिखाते हैं क्या नाम है भाई उसका, जिसका नाम दिखाते हैं? किसको होता है लंग कैंसर? किसको होता है? कहते हैं ना मुकेश के लगातार सिगरेट पीने से, तो एक स्पॉन्ज दिखाते हैं। तो मैंने आपसे सवाल पूछा था कि कैंसर क्या कॉज करता है, तो वो जब निचोड़ते हैं और दिखाते हैं कि इतना तार निकलता है उससे, समझ रहे हैं ना। तो ये सारी चीजें कैंसर कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो ओरल कैंसर और ये सब लंग कैंसर, तो ये आपको अवेयर करने के लिए ही मूवीज के स्टार्टिंग में दिखाने लगे हैं अभी। तो ये भी समझना जरूरी है कि इसके कितने आगे तक आप लोगों को नुकसान हो सकता है किसी को भी, अगर टोबैको कंटिन्यूअस यूज रहे। फाइन, एनी अदर क्वेश्चन? कुछ भी पूछना है पूछ लीजिए। Anything you want to share experience कि मैंने यूज किया था, नोट नहीं पा रहा हूं सर के बारे में बता देता हूं। यस प्लीज, आपको अपना, अपने फैमिली का, अपने फ्रेंड्स का, किसी का यूज अगर आपको पूछना है, क्या करना है। जो और हेल्थ सेक्टर नर्सेस एंड रीजनल प्रोवाइड करेंगे, तो आपको सबसे पहले आप गुड वर्क वर्क स्टार्ट करोगे, होम पॉलिसी घर से शुरू करोगे ना। बीड़ी के बिना सुबह पेट साफ नहीं होगा, बीड़ी चाहिए थी, ठीक है ना। घर में बड़े होते तो से नहीं करोगे, नहीं करोगे। अब शर्म आ रही है बता रहे हैं, खुद को दिनों से हॉस्टल में रहते हैं ना, जब हम लोग हॉस्टल में रहा करते थे तो कंबाइंड वॉशरूम 3-4 है, तो यहाँ पे बीड़ी रखी मिलती थी, तो इनमें से कोई होगा आप लोग में से में से कोई होगा, वो सही प्रॉब्लम क्या है? दैट इज व्हाई अवेयरनेस अंदर से नहीं, पहले आप लोग को पड़ेगा। प्रॉब्लम बहुत बड़ी है एक्चुअली। अभी पता है कि रिसर्च पे एक आर्टिकल भी आया था कि आवर इकोनॉमी आल्सो इज डिपेंडिंग ऑन दीस थिंग्स, डेफिनेटली अल्कोहल एंड टोबैको, आवर इकोनॉमी इज डिपेंडिंग।
तभी रेज होगी इकोनॉमी, तभी लोग ये चीजें बिकेगी। खरीद कौन रहा है? आप लोग खरीद रहे हैं ना, हो रहा है ना ऐसा। लॉकडाउन में अल्कोहल को हमने प्रमोट किया, ओपनली ठेके बोल दिए, ये नहीं कि आपको बैंक पे डिपेंड है, इकोनॉमी डिपेंड करती है इन चीजों पे। तो खरीद कौन रहा है? हम लोग खरीदते हैं। प्रोडक्शन हो रही है, लोकल प्रोडक्शन हो रही है, नहीं हो रही है? तो वो चीज तो आपके अंदर ही, आप लोग सब हॉस्टल में रहते हैं, बाहर घूमते करते हैं ना, खरीद रहे थे तो जेब में किसी के हो पा जाए, टेबला किसी के जेब में हो पा जाए, नहीं कोई शर्म की बात नहीं है। ओपनली हम लोग बात कर रहे हैं, टेबला जेब में होगा 100% होगा, दिखाएगा कोई नहीं, क्योंकि वॉशरूम में देखने को मिलता है, हम लोग अपने अटेंडेंस भेजते हैं, वॉशरूम में मिलता है। लेके कौन जा रहा है? या तो वो लोग या आप लोग। पकड़े भी गए, हम लोग यहाँ नहीं बताया किसी को, थोड़ा सा पकड़े गए हैं। तो आप लोग पूछो, शायद आपके लिए आप लोग अपना नाम मत लो, सर मेरे दोस्त ऐसे करते हैं, ये बोल दो क्या? जब आप लोग पढ़ाते तभी ऐसे करते हैं ना। अभी ये दिया कोई को डी-एडिक्शन सेंटर रेगुलर कोर्सिंग 70 80 पेशेंट्स आते हैं, ठीक है? कौन गया डी-एडिक्शन कोर्सिंग? खड़े हो जाओ, इशू शेयर करना पड़ेगा। डी-एडिक्शन के कितने पेशेंट थे वहां पे? अल्कोहल डिपेंडेंस के पेशेंट, निकोटीन डिपेंडेंस है ना, ठीक है? नॉर्मल पेशेंट भी थे, वहां पे थोड़े एग्रेसिव पेशेंट थे। ऐसे एग्जांपल्स दे रहे हैं कि वो फीचर्स को कुछ नहीं होता और उसके दिशा में कोई नहीं होगा, तो थोड़ा स्टिमुलेट करना कैसे? Ma'am, I don't have any question, but I want to share a challenge or a situation. What happens is, I want to break the hypocritical chain in our society. What happens generally when there is a function, marriage function or anything there is. So what the people does, they offer hookah, they offer cigarettes. Instead of that, we can offer fruits, we can offer some sweets, and so it is that we have to stop it from ourselves only, being a medical champions. So we have to start it from our home, and then we can create awareness in the society. Thank you. Thank you so much. That was an excellent suggestion. अगर सब लोग ऐसा सोचने लग जाए तो बहुत जल्दी हम ये टोबैको के प्रॉब्लम को डील कर पाएंगे। नाउ कमिंग टू योर क्वेरी कि हाँ यस, थोड़ा सा चैलेंजेस तो है ही कि उसको नहीं हो रहा है तो मुझे भी नहीं होगा, मैं तो इम्यून हूँ बिकॉज ये भी इम्यून है। तो यस, some people will smoke and drink alcohol and live till maybe 80-90 years, but ऐसे cases बहुत कम होते हैं, ठीक है? You can tell them that is an exception rather than the rule. हर rule का एक exception होता है। बैठे बैठे, see every rule has an exception. तो सब कुछ hard and fast नहीं होता है, और हम कोई machines नहीं है कि सबकी body same रहेगी। हर एक की बॉडी अलग है, हर एक का बॉडी का रिस्पॉन्स अलग होता है। लेकिन जितने भी लोग टोबैको ले रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम विल डेवलप सम और द अदर प्रॉब्लम। और अभी नहीं होगा, 1 साल बाद नहीं होगा, 5 साल बाद, 10 साल बाद होगा। तो अभी तो वो बहुत खुश है और एंजॉय कर रहे हैं, तो शॉर्ट टर्म में तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, पर लॉन्ग टर्म के जो नुकसान है वो बहुत ज़्यादा है। एंड अनफॉर्चुनेटली कैंसर का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तो इसका प्रिवेंशन इज़ द ओनली क्योर दैट वी हैव राइट नाउ। तो उनको समझाना है कि हाँ, वो एक पर्सन था जो शायद जिंदा रह गया टोबैको या अल्कोहल लेके, पर बाकी जो इतने हज़ारों लाखों लोग मर रहे हैं जो हॉस्पिटल में हैं, उनका क्या? तो यू हैव टू चैलेंज दीज पीपल। तो आप ये मेरा आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं, आप अपना कोई आर्ग्यूमेंट भी बनाएंगे तो आई वुड ऑल्सो लव टू हियर इट। एंड सब अपनी अपनी तरफ से जितना कर सकते हैं, जैसे मैम ने बोला कि हाँ शादियों में फ्रूट्स वगैरह रखो, उससे डेफिनेटली विटामिन्स बढ़ेंगे, सबकी हेल्थ अच्छी होगी। तो ये तो इससे अच्छी चीज़ तो कोई हो ही नहीं सकती है। तो येस, यू हैव टू फेस द चैलेंजेस। सोशल चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है, जैसे सर ने बोला कि रेवेन्यू इतना जनरेट होता है कि उसको भी चैलेंज करना बहुत मुश्किल है। बट येस, अपने लेवल पे हम जितना कर सकते हैं करेंगे, बाकी जो सोशल लेवल पे जो लोगों ने करना चाहिए वो उस हिसाब से वो भी होपफुली करेंगे। सो लेट्स होप फॉर अ बेटर फ्यूचर, दैट इज़ इट। एंड डॉक्टर रितिका, इफ यू वुड लाइक टू ऐड समथिंग। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।
I would like to conclude this by again thanking ma'am, sir for such a well-organized program. And I would like to thank Dr. Ritika for a very good lecture. Dr. Ankur behind the scenes, जिन्होंने बहुत ज़्यादा help की. Mr. सोनू कुमार, ये हमारे हर प्रोग्राम में रहते हैं और सक्सेसफुल बनाने में काफ़ी हेल्प करते हैं. सो थैंक यू सो मच एंड होपफुली विल कीप कंटिन्यूइंग दीज प्रोग्राम्स एंड हम करते रहेंगे. होपफुली मिलेंगे फिर से. थैंक यू सो मच. Your insight and expertise made a significant impact. Thank you for sharing your words of wisdom. Your words have truly inspired us all today. Now I would like to invite Shivani ma'am to express her vote of thanks for the organizing team and for our guests and for all. Thank you so much. Friends all, a very good morning to one and all present over here. On behalf of Pannadhaima Subharti Nursing College, I am glad to be standing here to express my gratitude and thanks. First of all, I would like to thank our principal ma'am and dean respected Dr. Geeta Parmanda ma'am for giving me this opportunity to organize this program. I would like to thank our today's speaker, respected Dr. Suleha, Assistant Professor ma'am, Department of Mental Health Nursing, Mental Health from Subharti Medical College and Hospital. I would like to thank Dr. Ritika, Senior Resident, for giving their precious time and enlightening us with their knowledge and words of wisdom. Thank you so much ma'am. आपने टाइम निकाला हम लोगों के लिए. इतना अच्छा सेशन रहा. बच्चों ने भी बहुत कोऑपरेट एंड कोऑर्डिनेट किया और शांतिपूर्वक बैठ के उन्होंने इस चीज़ को समझा. नेक्स्ट आई वुड लाइक टू थैंक आवर ऑर्गेनाइजिंग टीम of this event, Department of Mental Health Nursing, for organizing this event to spread awareness on World No Tobacco Day. And lastly, I would like to thank our students and participants for showing their patience and hearing this session peacefully and make this event successful. Thank you so much for all those who are present here and those who are behind the supporters. Thank you so much. Thank you, students.